اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور جس طرح ہم آپ کو یہاں سے بتاتے ہیں اسی کے مطابق رمضان کو گزار رہے ہوں گے۔ تو پیارے ساتھیوں، آج ایک اور مرتبہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے دوست، آئے ملتے ہیں ہمارے دوستوں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں پیارے ساتھیوں، ہمارے دوست تو بالکل خیریت سے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ بھی بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں پروگرام میں آ کر؟ تلاوت قرآن۔ ماشاءاللہ۔ تو پیارے ساتھیوں، چلتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو پیارے ساتھیوں، آپ اس نے تلاوت قرآن مجید، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ صرف سنتے نہیں بلکہ سمجھنے کی بھی بھرپور کوشش کرتے ہوں گے۔ تو پیارے ساتھیوں، آپ بتا سکتے ہیں قرآن کریم کس پہ نازل ہوا تھا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ رسول خدا پر نازل ہوا تھا جو ہمارے آخری نبی ہیں، اور ان کو ہمیں کیا بنانا چاہیے؟ اپنا اسوہ بنانا چاہیے۔ اسوہ کا مطلب ہے رول ماڈل بنانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں آج کہ رول ماڈل کیا ہوتا ہے۔ رول ماڈل یعنی کوئی انسان جس طرح وہ زندگی گزارتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی کی طرح زندگی گزاریں۔ جیسے رسول خدا ہے، تو اگر رسول خدا نے کتنے اچھی طریقے سے زندگی گزاری، ہمارے لیے اتنی ساری چیزیں دی، ہمیں اتنی ساری چیزیں سکھائی، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول خدا کو اپنا اسوہ بنائیں، رول ماڈل بنائیں، تو ہمیں چاہیے کہ رسول خدا کو رسول خدا کے مطابق زندگی گزارے، جس طرح رسول خدا نے زندگی گزاری۔ تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہے اور خدا سے عبادت میں مشغول رہے، ہمیں اتنی اچھی چیزیں سکھائیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ رسول خدا کے مطابق زندگی گزارے، رسول خدا کس طرح گزاری ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، ہم نے آج تو اسپائڈر مین اور سپر مین کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ رسول خدا کو، کتنے سارے امام ہمارے پاس، ان کو، یا پھر شہداء کو جو شہید ہو جاتے ہیں، ان کو رول ماڈل بنانا چاہیے، نہ کہ اسپائڈر مین، بیٹ مین، کارٹون، اس کو رول ماڈل نہیں بنانا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم کارٹون کو رول ماڈل بنائیں گے تو ہم یہی چاہیں گے نا کہ ہم بھی ان کی طرح طاقتور ہوں، مشہور بنے، لیکن اس سے ہمیں نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم رسول خدا ائمہ علیہ السلام کو ہم لوگ اپنا اگر اسوہ بنائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو اسوہ بنائیں،
रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अइम्मा अलैहिस्सलाम को। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप भी रसूल खुदा के मुताबिक और आप दोस्त भी रसूल खुदा की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। तो अभी एक कहानी का टाइम हो गया, मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। तो प्यारे साथी, चलते हैं एक छोटे से वक्फे की जाए। जी तो प्यारे साथियों, हम आपको एक और मरतबा अपनी क्लास में खुशामदीद कहते हैं। तब हो गया था एक वाक़ये का टाइम, तो मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा आज। ये वाक़या रसूल खुदा का ही है कि रसूल खुदा रोज़ मस्जिद की तरफ जाते थे, तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत के घर से सामने से गुजरते थे। तो वो बूढ़ी औरत हमेशा यही करती थी, वो रसूल खुदा को पसंद नहीं करती थी। तो जो पूरे घर में पूरे दिन का कचरा जमा होता था ना, सारा कचरा रसूल खुदा पर फेंक देती थी। इतनी बुरी बात है ना, वो ये करती थी। तो अगर हम पर कोई कचरा फेंके तो हमें तो फौरन गुस्सा आ जाए, हम तो फौरन उसको जमाट लगाने पे आ जाए, लड़ाई करने पे आ जाए। होता है ना हमारे साथ, बच्चों होता भी हमारे साथ, लेकिन रसूल खुदा उसको कुछ भी नहीं कहते थे। तो 2-3 दिन ऐसी करती गई वो। फिर बाद में एक दिन उसने ऐसा नहीं किया, तो रसूल खुदा ने बोला कि आज ये क्यों नहीं आई है। तो रसूल खुदा उसके घर गए, रसूल खुदा उसके घर गए, उसने दरवाज़ा खोला। फिर रसूल खुदा ने देखा कि वो बीमार थी। तो रसूल खुदा ने उसकी अयादत की, फिर उनको चीज़ें बना के पिलाई और उनको यानी उनको सहारा दिया ना उनको, क्योंकि उनका कोई भी नहीं था उनके साथ, तो उनको सहारा दिया। तो फिर वो बूढ़ी औरत बोलने लगी कि मैं तो समझी थी कि आप मेरे से इंतकाम लेने आए हो, क्योंकि वो रोज़ फेंकती थी ना कचरा। तो वो सब उसने रसूल खुदा को बोला, मैं समझी कि आप इंतकाम लेने आए हो। लेकिन रसूल खुदा ने वो तो उनकी आयादत के लिए आए थे, वो देखने आए थे कि वो औरत आज क्यों नहीं आई, क्योंकि वो बीमार थी। इस वजह से रसूल खुदा ने उनकी आयादत की और उन पर गुस्सा नहीं किया, उनसे इंतकाम नहीं लिया। लेकिन हम होते तो क्या करते, इंतकाम लेते ना। लेकिन हमें देखा रसूल खुदा ने किस तरह अमल किया। अगर हम रसूल खुदा को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, रसूल खुदा की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम रसूल खुदा की तरह जल्दी जल्दी गुस्सा ना हो, बल्कि उनकी मदद करें, जो मुसीबत में उनकी मदद करें, और छोटी छोटी बात पे गुस्सा ना हो। तो प्यारे साथियों, देखा रसूल खुदा ने किस तरह किया। इसी तरह हमें भी इंतकाम लेने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो मुसीबत में हो, चाहे आपका दुश्मन भी हो, उसकी भी मदद करनी चाहिए। उल्ला भाई, रसूल अल्लाह का एक लक़ब अमीन है, यानी अमानत में खयानत ना कर। जी नहीं करते थे अमानत में खयानत। ये बहुत अच्छा लक़ब बताया सलमान भाई ने कि रसूल खुदा अमीन थे और अमानत में खयानत नहीं करते थे। हाँ उल्ला भाई, मुझे भी एक लक़ब आता है। बताएं कौन सा लक़ब है वो? सादिक, यानी हमेशा सच बोलने वाला, और वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। माशाअल्लाह, देखिए अफजल भाई ने हमें कितनी अच्छी बात बताई है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। इसीलिए हमें चाहिए कि हम भी कभी झूठ ना बोले। हाँ, इसी के मज़मून में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक चरवाहे के भाई के बारे में। आप जानते हैं ना, जो भेड़ बकरी ले जाते हैं ऊपर पहाड़ों पे उनको घास खिलाने के लिए, उसका एक छोटा भाई होता है। तो वो उसका जो बड़ा भाई होता है वो शहर गया होता है काम से। तो बोलते हैं अपने छोटे भाई को कि आप ले जाना बकरी और भेड़ ना। तो उसके छोटे भाई बोलता है ठीक है। फिर उसके छोटे भाई एक दिन ले जाता है, तो बकरियां और जो शीप्स होती है वो सारा तो घास खा रही होती है, लेकिन वो बोर हो रहा होता है। तो वो सोचते हैं क्यों ना मैं कोई मस्ती करूं। ठीक है, तो क्या मस्ती करता है पता है आपको? वो क्या करता है, वो चिल्लाता है कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, वुल्फ आ गया, वुल्फ आ गया, मदद करो, मदद करो। तो नीचे सारे जो उनके गांव वाले होते सारे चीज़ें लेके आते हैं। कोई कुल्हाड़ी लेके आ जाता है, कोई चाकू लेके आ जाता है, सारे भाग के ऊपर आते हैं। जब आते हैं सारे ऊपर, तो उसका भाई हंसता है, हाँ मैं तो मजाक कर रहा था, आप लोग तो ऐसे ही आ गए। तो फिर अगले दिन भी यही करता है वो, कि वो दोबारा चिल्लाते हैं कि वुल्फ आ गया, वुल्फ आ गया, कोई मदद करो। दोबारा वो सारे आ जाते हैं। दोबारा वो बोलता है मैं तो ऐसी मस्ती कर रहा था, आप आ गए। यानी 2 बार उसने झूठ बोला। फिर तीसरे दिन असल में वुल्फ आ जाता है, सच में वुल्फ आ जाता है। वो चिल्लाता है वुल्फ आ गया, वुल्फ आ गया। लेकिन वो गांव वाले सुनते कहा ये दोबारा मस्ती कर रहा होगा। फिर वो गांव वाले नहीं आते उसकी मदद करने। फिर वुल्फ आता है, पहले सारे उसकी शीप्स और बकरियों को खाता है, फिर उसको भी खा जाता है। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, मस्ती में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया।
इसी लिए हमें मस्ती मस्ती में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो प्यारे साथियों, देखा रसूल खुदा का भी हमने आपको बताया कि रसूल खुदा की ज़िंदगी के मुताबिक हमें अमल करना चाहिए। जिस तरह वो ज़िंदगी गुजारते थे इसी तरह हमें भी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और हमें झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि जिस तरह रसूल खुदा भी नहीं बोलते थे, वो सादिक थे, इसी तरह हमें भी हमेशा सच बोलना चाहिए। रुल्ला भाई मुझे भी एक नजर आती है, मैं सुनाऊं? जी आप भी सुनाएं। अच्छे मैं लिख के लिख- लाएं। अच्छा, झूठ के बारे में। बच्चों सुनाऊं तुमको मैं एक ऐसा वाकया, ये वाकया दिखाता है नेकी का रास्ता। आकर रसूल पाक से एक शख्स ने कहा, मेरे गुनाहों की नहीं कोई है इंतहा, इनमें से कोई एक मैं चाहता हूँ छोड़ूं मैं हर बुराई को मुमकिन नहीं सरा। प्यारे नबी ने सुन के उसे हुक्म ये दिया, ऐसा अगर है छोड़ दे बस झूठ बोलना। वो शख्स था दिल ही दिल में, वो खुश था दिल ही दिल में, बस इतनी सी बात है। वादा किया नबी से वहाँ से चला गया, चोरी के वो इरादे से उठा न कर सका, और लूट मार करने से वो बाज ही रहा। आमादा जब बुराई पे होता तो सोचता, पूछेंगे जो रसूल तो उनसे कहूँगा क्या। छोड़ा जो झूठ छूट गई उसके सब गुनाह, दुनिया और आखिरत की वो जिल्लत से बच गया। बच्चों सुनो, है झूठ ये बुराई की जड़ है, इतना जान लो, सच्चाई नेकियों का खजाना है मान लो। माशाल्लाह। तो प्यारा से देखा, और अली भाई ने हमें कितनी अच्छी नज़म सुनाई है कि इसमें एक नज़म के अंदर एक वाक़या है कि जो अली भाई ने हमें बता दिया, मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, कि इसमें रसूल खुदा के पास बंदा आता है, कहते हैं कि मुझे कोई गुनाह छोड़ना है, तो रसूल खुदा झूठ बोलते हैं, यानी झूठ हर बुराई की जड़ है। तो अगर हम झूठ छोड़ देंगे तो हमसे सारे गुनाह छूट जाएंगे। तो प्यारे साथियों, आपको रसूल खुदा को अपना रोल मॉडल बनाना है और झूठ से दूर ही रहना है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप ये झूठ बोलने की बुराई अगर है तो छोड़ दें, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत अजीम फुर्सत है इसमें तिलावत कुरान मजीद से भी गाफिल नहीं रहना। तो प्यारे साथियों, हमारी अगली क्लास तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।